Hello students, I am giving you a brief review of chapter motion. As we have introduced the term rest and motion. As you see all the things in your surroundings. As you are sitting at your place, when you are observing at your surrounding like vehicles are crossing in your street or the road, it means an object is said to be at rest or in motion with respect to its surroundings. So surroundings plays a very important role because position, or you can say change in position of an object can be change in position, not motion. Change in position can be judged with respect to surroundings. So, an object is said to be at rest if it does not change its position with respect to surroundings. Similarly, an object can be in motion if it changes its position with respect to surroundings. So you have to see your surroundings, that what are the objects that are in motion, and when you are looking at the walls of your room, your fan, your cupboards, bed, all these things are at rest. But an insect may be crawling over the floor, that can be in motion. Now rest and motion, these are relative. What do you mean by relative? These are relative terms. Like one event can be appearing as to be at rest, but at the same time it is appearing to be in motion. Let me take an example. Suppose I am taking a bus in which persons are sitting. So when this bus is at rest, so all the persons sitting inside it along with the bus, these are at rest. But when this bus is in motion, when it is moving, so for the person who is inside, suppose for this person, all these passengers or persons sitting inside this moving bus, these are not changing their position. They are at fixed distance from it. So it means these are at rest with respect to each other. A person sitting inside a moving bus, all will be at rest. But for a person standing outside, suppose a person is standing here and the bus is crossing. So for that person, all the passengers sitting inside this moving bus along with the bus, these all are in motion. So for this person, this event is in motion. For this person, for all these all passengers are at rest. So it's the same thing कि एक ही event, एक ही object, एक passenger को, एक person को rest पर नजर आ रहा है, लेकिन दूसरे person को वो क्या लग रहा है, motion में appear हो रहा है. So rest and motion are relative terms. Now when we are explaining these rest and motion terms, we always talk about a term that is origin or reference point. So first of all, let me understand what is this origin or reference point. Basically origin क्या हो सकता है? It is a fixed point with respect to which measurements can be done. फिक्स्ड पॉइंट, इसको सिंपल टर्म्स में हम याद कैसे रखेंगे? ये एक फिक्स्ड पॉइंट है. बट इफ यू हैव टू गिव द डेफिनेशन, देन यू हैव टू राइट इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच मेजरमेंट कैन बी डन. सी एज यू प्लॉट ग्राफ सबने प्लॉट किया जूनियर क्लासेस में. वी नो दैट विद इन द ग्राफ वी टेक दिस एज अ फिक्स्ड पॉइंट एंड whatever scale you are taking on its right, that are done with respect to this origin. Whatever scale you are using on its left, that is also done with respect to this origin. That means this is a fixed point.
सपोज यू आर सेइंग दैट आई हैव कवर्ड 5 मीटर डिस्टेंस, 5 मीटर मूव किया आपने, तो आपको कैसे पता चलेगा आपने 5 मीटर मूव किया? कि एक फिक्स पॉइंट के विद रिस्पेक्ट में आपने जो भी पाथ ट्रेवल किया वो पाथ लेंथ क्या हो गया? पर्टिकुलर मेजरमेंट। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आप ये लेते हैं कि आपका होम एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि फिक्स है, वो तो उसकी पोजीशन तो कभी चेंज नहीं होगी, और आप स्कूल तक जा रहे हैं। सो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम होम टू स्कूल, सो दिस फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज टेकन एज द ओरिजिन। सपोज योर स्कूल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। सो कैसे पता चला कि 2 किलोमीटर है? क्योंकि आपने यहाँ एक फिक्स पॉइंट लिया, तो उस फिक्स पॉइंट के विद रिस्पेक्ट में स्कूल का डिस्टेंस कितना हो गया? 2 किलोमीटर। So it means origin is a fixed point that we can choose as per our convenience. We have chosen this home as origin. We can also choose this school position as origin. Measurement can be done from school or from home. So if I have chosen this as origin and this distance was 2 kilometer. We will do it in detail about the direction. I am just giving you the concept of origin now. Now coming to physical quantity. What is the physical quantity? See, physical quantities क्या होती हैं? पहले हम इसका example लेते हैं. Like we use mass. मास आपको मालूम है कि 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, किसी भी बॉडी का अगर आप मास लेते हैं. लेंथ, मान लो लेंथ ऑफ एन, आप रोप ले लें, स्ट्रिंग ले लें, तो दैट इज़ अ लेंथ. लेंथ कह सकते हैं, डिस्टेंस भी कह सकते हैं कि आप कहते हैं कि आपके होम से स्कूल तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लेंथ. टाइम, फोर्स, बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं. सो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी टर्म्स में, जिसको बेसिकली हम मेजर कर सकते हैं, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड. और इन्हीं क्वांटिटीज की टर्म्स में सभी फिजिक्स के लॉज को हम डिस्क्राइब करते हैं, चाहे हम इन क्वांटिटीज को डायरेक्टली यूज करें या किसी लॉ के अंडर यूज करें. That means physical quantity are the basic quantities in terms of which laws of physics can be explained or described. Now, scalar quantities. Scalar quantities are quantities which has only magnitude, which can be specified in terms of magnitude only. It means we are not taking the concept of direction along with. एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इट कैन बी डिस्टेंस, स्पीड, मास, etc. There can be other quantities also. Next, vector quantities. Vector quantities, quantities which has both magnitude and direction, which can be specified by both magnitude and direction. This is called a vector quantity. What can be the example? Displacement, velocity, acceleration, force, etc. So just I'm giving you the basic concept of scalar and vector quantities. In higher classes you will discuss vector quantities in detail. So when you are taking scalar quantities, we are not talking about direction. We will consider its value, numerical value only. But in vector quantities, we will consider both magnitude as well as direction. Now, स्केलर क्वांटिटीज को जब हमें ऐड करना होता है, वी कैन ऐड देम लाइक एनी टू नंबर्स. लाइक डिस्टेंस को हम जब डिस्टेंस में ऐड करते हैं, इट विल ऑल्सो गिव अनदर डिस्टेंस. सपोज 5 मीटर प्लस 5 मीटर, इट विल बी 10 मीटर. So for scalar quantities, we can add them algebraically. But vector quantities, we cannot add them directly. But you have to learn only this step at your stage of class 9, that they have some vector rules to follow. For vector addition, you have some vector rules. Otherwise, for scalar quantities, they can be added algebraically. Now, after this, next concept I am taking distance
and displacement. This is a very important concept. See, distance and displacement. सबसे पहले देखिए कि if I am choosing these 2 points A to B, suppose from your home to your school. When you are going from home to school, what can be the possible ways? What can be the possible path? One can be like this straight, another can be you are going like this, another मान लो आपको कुछ परचेज करना है स्टेशनरी का सामान, you are going to some stationery shop and then you are just going along this path, like this is the way. So there can be different ways to go depending upon the paths available. So out of these 4 paths, suppose हमारे पास ये 4 paths हैं, तो अब इसमें हम क्या कहेंगे? नाउ द टोटल पाथ लेंथ. टोटल पाथ लेंथ क्या है कि मान लो अगर आप ए से बी तक जा रहे हैं और ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, यानी अब यहाँ पर आप स्ट्रेट पाथ पे ना जाके अगर आप इस सेमी सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं तो ये पाथ लेंथ कुछ अलग है. तो उस केस में डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला पाथ लेंथ. When a body or a person is moving along this path, तो ये वाला टोटल पाथ लेंथ होगा. और जब सिर्फ इसी पाथ के अलॉन्ग डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो यहाँ पे पाथ हो गया A to B, सो इट विल बी मूविंग along दिस स्ट्रेट पाथ. तो अगर जिस भी पाथ पे जा रहे हो उसका टोटल लेंथ क्या कंट्रीब्यूट करेगा? डिस्टेंस. सो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी दैट इज टेकन एज डिस्टेंस. जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी द shortest path length. Displacement will be the shortest path length. अब देखिए हमारे पास 4 paths हैं, इनमें सबसे छोटा पाथ A to B है. इसको क्लियर करने के लिए मान लो हम एग्जाम्पल लें, क्योंकि हमें डाटा चाहिए इसके लिए. मैं ये कहूँ कि मान लो ये O पॉइंट ले लिया हमने, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन. A से O तक का डिस्टेंस मैंने ले लिया 1 किलोमीटर और O से B तक का डिस्टेंस ले लिया 1 किलोमीटर. अब ये वाला डिस्टेंस मैंने ले लिया 2 किलोमीटर और ये वाला ले लिया 1 किलोमीटर. ठीक है. तो अगर मैं सिंपली इस पाथ की बात करूं और इस पाथ की बात करूं, इन दोनों के कंपैरिजन में, अब अगर वो बॉडी या पर्सन A से B की तरफ जा रहा है लेकिन इस C पॉइंट से होते हुए, तो पाथ लेंथ कितना हो गया? 2 + 1 यानी 3 किलोमीटर हो गया. तो अभी क्या हो गया? 3 किलोमीटर तो पाथ लेंथ हमने नोट किया. अभी हम इसको कंपेयर करेंगे. अब A से B तक अगर पर्सन ऐसे गया तो 1 + 1 2. तो इन दोनों में शॉर्टेस्ट कौन सा हो गया? दिस वन. सो दिस इज योर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ. तो इसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू end point, whereas distance is the total path length covered by a body from starting point and end point, from first point to end point, right? Now when we are understanding this concept of distance and displacement, so now if we take differences between distance and displacement, first it is the definition difference. Distance is the total path length covered by the body, whereas displacement is the shortest path length. Second point, distance is a scalar quantity. It is a scalar quantity, whereas displacement is a vector quantity. Why? Because displacement, as it is the shortest path length in between initial and final points, you can also refer to it as it is the distance traveled by a body in a particular direction. क्योंकि displacement में हम direction की बात करेंगे कि body is moving from one point to another in this direction. So इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, distance traveled in particular direction. जबकि डिस्टेंस के केस में हम सिर्फ पाथ लेंथ कहते हैं, कोई डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं. दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज अ स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर. थर्ड, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, whereas displacement can be positive, negative and जीरो. यानी इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी में हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. दैट आई विल एक्सप्लेन इन द कमिंग एग्जाम्पल्स. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल आई एम टेकिंग. लेट अ बॉडी इज मूविंग along this circular path, semi circular path.
like the radius of this circular path is 1 kilometer. I have sent these numericals to you, but I am just explaining it here. So I am not writing statement here. What I am taking, a person is moving from A to B, that is this semicircular path, and complete half revolution. That means starting from A, reaching to point B. Calculate distance and displacement. देखिए इस सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना हो गया 1 किलोमीटर. अब पर्सन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी. अब पहुंचने के ए से बी तक पहुंचने के कितने पाथ्स हैं? वन इज दिस वन, अनदर इज दिस वन. सो लेट वी कैलकुलेट पाथ लेंथ ए टू बी. अब देखिए ये क्या है एक्चुअली हाफ सर्कल. तो हाफ सर्कल जब हमें इसकी लेंथ लेनी है तो क्या होगा? हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल. पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर. अगर कंप्लीट सर्कल होता तो पेरीमीटर है, पूरी लेंथ ऑफ सर्कल होती 2 पाई आर. लेकिन अब यहाँ हाफ सर्कल है तो डिस्टेंस क्या होगा? दिस विल बी 2 पाई आर अपॉन 2, क्योंकि पाथ लेंथ तो यही बनेगी. सो इट विल बी पाई आर. पाई की वैल्यू 22/7, डिस्टेंस 1 किलोमीटर. सो इट इज 22/7, सो इट इज 3.1 किलोमीटर. आई हैव टेकन इट अप टू 1 डेसिमल प्लेस. अब अगर हम निकालें ए टू बी, अगर ये डायरेक्टली ओ पॉइंट से होके जा रहा है तो उस केस में पाथ लेंथ कितनी आ रही है? 1 + 1, 2 किलोमीटर. तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप देख सकते हो 3.1 इज मोर. सो दिस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, whereas it is the shortest path length covered by the body. So displacement will be 2 kilometer. So this was the first numerical which I have explained in the class. Second, I am taking, let a body is moving along this circular path, circular track. Let it is having radius, any radius I am taking, let it be 1 kilometer. And if a person has started jogging over this circular track and completes 2 revolutions. If a person has completed 2 revolutions along this circular path, then calculate distance and displacement. This question also I have discussed in the class. Statement I have sent you. So just I am explaining. अब देखिए टोटल पाथ लेंथ अगर हम निकालें, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इफ अ पर्सन इज मूविंग अलोंग दिस पाथ, सो ए पॉइंट से अब वापस ए पॉइंट पर आ गया, तो यानी ये एक रेवोल्यूशन का पाथ लेंथ कितना हो गया? 2 पाई आर. एक पाथ लेंथ पूरा रेवोल्यूशन 2 पाई आर. लेकिन यहाँ कितने रेवोल्यूशन है? 2 रेवोल्यूशन, यानी 1 रोटेशन के बाद, 1 रेवोल्यूशन के बाद फर्दर ये नेक्स्ट राउंड लेगा. सो +2 पाई आर, अगेन रीचिंग टू द सेम पॉइंट ए. सो इस केस में डिस्टेंस कितना हो गया? 4 पाई आर. एंड हेयर 4 पाई इंटू 1. दिस इज 4 into 22/7 kilometer. You can do the calculation. In the class, I have not taken the value of R. I have explained that numerical in the class in terms of R only. You can do at that point. This is an example I have taken. Right? If I have taken radius R equal to 1 kilometer, then you can put. If I have not taken the radius R equal to 1, you can leave at this point. Now next is displacement. अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट. अब देखिए एंड पॉइंट भी सेम है. जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट कॉन्साइड कर रहे हैं तो देयर विल बी नो डिफरेंस इन पोजीशन. सो व्हेन देयर इज नो डिफरेंस इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. यू कैन राइट बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स are coinciding. As initial and final points are coinciding, so displacement is 0. I'm just giving a review. When a body or a person is moving along this circular path, complete 1 revolution, then also there's displacement 0. When it is covering 2 revolutions, then also displacement 0. Whereas distance will not be 0. Distance क्या होगा? पाथ लेंथ, यानी 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, यानी इट विल बी 4 पाई आर. नाउ सो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव
और 0। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है इसके, यहाँ देखिए इस केस में फर्स्ट न्यूमेरिकल में डिस्टेंस पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है। इस सेकेंड न्यूमेरिकल में देखिए डिस्टेंस पॉजिटिव है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है। सो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0 it means this value is also possible. Now I am giving you another example that will give you the concept of negative displacement. Let me take this example in which O is taken as the origin and we have taken 3 points on this straight line. A at a distance of 5 km from origin, B at a distance of 2 km from point A, and C at a distance of 3 km from origin. See, before giving the idea of positive, negative and zero displacement, I will just recall the concept of graph. ग्राफ में जब आप प्लॉट करते हैं तो क्या कहते हैं, इस ओरिजिन के राइट में सारा मेजरमेंट पॉजिटिव होता है, लेकिन जब इस डायरेक्शन में आते हैं तो मेजरमेंट नेगेटिव होता है। ये सर आपने ग्राफ में कॉन्सेप्ट मैथ्स में करते हैं 8th क्लास में। ऐसे ही when you are taking the measurements above origin along this y-axis, this is positive, and when you are going downward, this is negative. So हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है कि origin के right का measurement positive और उसकी तरफ या उससे left में आते हुए measurement negative. तो इस example में देखिए O हमने एक fixed point लिया, reference point. So अब अगर हमें करना है measurement कि if a body is moving from O to B, so in moving from O to B, what is the path length? सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक ही path length है, यानी इसी लाइन के along मूव करना है, तो path length हो गया O to B। अब ये O to B का टोटल मेजरमेंट क्या होगा, दिस इज OA प्लस AB, यानी दिस 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, तो ये हो गया 7 किलोमीटर, यानी O से B का मेजरमेंट हो गया 7 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, यानी ये हो गया 7 किलोमीटर, लेकिन यहाँ कोई और पाथ भी नहीं है, तो यहाँ पर इसी स्ट्रेट पाथ पे यहाँ पर हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस के ही इक्वल हो जाएगा। सो इट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो बिकॉज देयर इज अ सिंगल पाथ। नाउ लेट वी टेक द केस व्हेन द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम O to B and again reaching to point O, यानी O से स्टार्ट करके B की तरफ, फिर B से वापस O, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया। जैसे कि आप अपने घर से निकलते हैं, स्कूल आते हैं, स्कूल से वापस घर आते हैं। सो उस केस में डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा पाथ लेंथ यानी O to B प्लस B to O। यह हमेशा ध्यान रखना है डायरेक्शन बदल रही है, लेकिन हमें उस डायरेक्शन को डिस्टेंस में नहीं नोट करना है, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करनी है। तो O से B का टोटल पाथ लेंथ कितना है 7, और B से O में भी उतना ही पाथ लेंथ है 7, तो ये हो गया 14 किलोमीटर। तो टोटल पाथ लेंथ हो गया 14 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आपको पता चलेगा। फिगर में देखिए कि यहाँ से O से B पर और B से वापस O पर आने में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कॉन्साइड कर गए। दैट मीन्स यू आर रीचिंग बैक टू योर होम फ्रॉम द स्कूल। सो इन दैट केस टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 0। और अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं O to B, अब ये BO है, यानी डायरेक्शन जब हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये डायरेक्शन बदल गई। तो इस डायरेक्शन को देखो O to B ये हो गया 7 और B से O आने में हो गया ये 7, तो क्या लिखेंगे 7 - 7 हो गया 0 किलोमीटर। सो दिस इज द एग्जाम्पल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0। नाउ let we take third case when body is starting its motion from O to B and reaching to point C, यानी O से B तक जाके वापस यहाँ ना रुक के आगे चले गए C पॉइंट पे, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखिए O to B and then B to C, तो टोटल पाथ लेंथ में तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, O to A प्लस A to B प्लस B to A प्लस A to O प्लस OC,
देखिए फिगर में, देखिए ऐसे देखिए, ओ ए का मेजरमेंट आपके पास कितना है, ओ ए का मेजरमेंट है 5, ए बी का है 2, देन बी ए का है 2, ए ओ का है 5 और ओ सी का है 3। तो ये कितना हो गया, 7 + 7 14 + 3 17 किलोमीटर। ये टोटल पाथ लेंथ हो गया। You can just check from this figure. See, when you will just watch this video, just pause the videos and then you will see. हो सकता है कि क्लास में मैंने वैल्यूज़ कुछ और ली हूँ और यहाँ एक्सप्लेन करते हुए वैल्यूज़ में चेंज किया हो, तो दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई भी केस कर सकते हो आप। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट, वेन यू आर एक्सप्लेनिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, अब हमें ध्यान रखना है, देखो डिस्प्लेसमेंट में हमें साइन बदलना होगा। डिस्प्लेसमेंट को निकालने के हम दो तरीके सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं शॉर्टेस्ट वे बता रही हूँ। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और फाइनल पॉइंट ये है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, यानी ओ से सी तक पहुंचने का ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी वो ओ से सी पे चला गया। ठीक है, तो एक्चुअली मोशन जिस भी डायरेक्शन में हुआ है, लेकिन मेजरमेंट किसका करना है, डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो ये क्या होगा, ओ सी इन दिस ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ डिस्प्लेसमेंट के लिए -3 किलोमीटर। इसको लिख सकते हैं -3 किलोमीटर। तो मैं क्या लिखूंगी इसको, देखिए इट विल बी -3 किलोमीटर। और मैं अगर इसको प्रॉपर फॉर्मूले से निकालना चाहूँ तो ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस ए ओ प्लस ओ सी। तो ओ ए और ए बी 5 + 2, बी ए का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू तो ए बी के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन बदल गई तो -2। ए ओ ए के ऑपोजिट डायरेक्शन है तो -5। ओ सी ओरिजिन के लेफ्ट में हो गया, तो लेफ्ट में मेजरमेंट क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये तो सब कैंसिल हो गया, क्या बचा, -3 किलोमीटर। तो आप शॉर्टेस्ट मेथड से भी समझ सकते हैं, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। अगर आपको वहाँ है कि कैसे फाइंड आउट किया, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज नॉट द न्यूमेरिकल। ये जो मैंने डाटा दिया है, ये सारा एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। So that's all for today. I have explained only this concept in the class. Now write down all the differences between distance and displacement and complete the notes and learn the concepts also. Any doubt, you can come in, whenever you will come in the class, you can ask. Thank you.